It'd be gone. You didn't know nothing about it. It'd just be the same thing. वो उठाए जा चुके होंगे और आपको उनके मुतल्लिक खबर भी ना होगी। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। What am I trying to say? I'm not trying to scare you, wear you. I want you to be on your toes. Amen. Be ready, watching every minute. Quit your nonsense. Just get down to business with God, because it's later than you think. Now remember, the true bride. अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको खौफजदा या परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हर घड़ी देखने के लिए तैयार रहें। अपनी हमाकत को छोड़ दें, फक्त खुदा की खिदमत करें, क्योंकि ये आपकी सोच से बढ़कर है। अब आप हकीकी दुल्हन को याद रखें। Now there is a false bride. We get that in Revelation 17. She said, I am a widow and have no need of nothing. You see, setting up on the scarlet coal beast and so forth, the beast rather. अब देखें, क्योंकि एक झूठी दुल्हन भी है, जिसे हम मुकाशवा 17 में देखते हैं। वो कहती है, मैं बेवा हूँ और मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। आप ध्यान दें कि वो किरमजी रंग के जानदार पर, बल्कि हैवान पर बैठी हुई है और वगैरह वगैरह। Now, but the true bride will be made up of thousands times thousands of people. But it will be the elect out of every church age. अब देखें, मगर हकीकी दुल्हन हजारों लाखों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन ये हर कलीसिया जमाने में से चुनी होगी। Every time a message went forth and the people believed it and accepted it and all the light it was, when they were sealed away until that day of redemption. हर मर्तबा जब पैगाम सुनाया गया तो लोगों ने उस पर यकीन किया और उसकी पूरी रोशनी को कबूल किया, और तब उन पर मखलसी के दिन के लिए मोहर की गई। Oh, Jesus speaks the same thing when he said, the sound come and the seventh watch, that's the last church age, okay? And said, behold, the bridegroom cometh, go out to meet him. क्या यीशु ने यही बात ना कही जब उसने कहा कि 7वीं घड़ी में शोर मचा, ये आखिरी कलीसियाई जमाना है, समझे? और उसने कहा, देखो दुल्हा आ पहुंचा, उसके इस्तकबाल को निकलो। Then the sleeping virgin come, rubbed her eyes and said, suppose I ought to have some of that oil too, so maybe you better have some. फिर सोने वाली कुंवारी अपनी आंखें मलती हुई आती है और कहती है, मेरा ख्याल है मुझे भी उस तेल में से कुछ लेना चाहिए, चुनाचे बेहतर है कि आप कुछ ले लें। And the real true bride there said, we just got enough for ourselves. We just got enough to get in ourselves. We can't give you nothing. If you want something, you go pray up. और तब हकीकी और सच्ची दुल्हन ने वहां खड़े हुए कहा, ये सिर्फ हमारे लिए काफी है। ये सिर्फ हमें अंदर दाखिल करने के लिए काफी है। हम आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप जाएं और दुआ करें। And while she was gone, the bridegroom come, and in went the bride. And then the remnant there, the ones that were absolutely virgins, the church was left outside. And he said, there will be weeping and wailing and gnashing of teeth. और जब वो जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और दुल्हन अंदर दाखिल हो गई, और तब जो पीछे रह गई थी वो भी यकीनन नेक कलीसिया थी जो बाहर रह गई, और उसने कहा, वहां रोना और मातम और दांतों का पीसना होगा। See? Now, that's the elect. And when the sound come, the bridegroom cometh, then every one of those that slept down through those ages awaken. Every one. देखें, अब ये चुनिंदा है, और जब आवाज सुनाई दी कि देखो दुल्हा आ पहुंचा, तो हर एक जो उन जमानों में सोया हुआ था, उनमें से हर एक जाग उठा। See, it isn't God as we think just go to hunt him out a few thousand people of this age and take them. देखें, खुदा ऐसा नहीं जैसे हम सोचते हैं कि वो इस जमाने के चंद हजार लोगों को तलाश करके ले जाएगा। It's the very elected out of every age. And that's the reason Christ has to stay on the meteor seat back here as an intercessor until the last one comes in at the last age. बल्कि वो हर जमाने के खालिस चुनिंदा लोग होंगे, और यही वजह है कि यीशु को बतौर शफायत कनेदा सालस की जगह पर उस वक्त तक रुकना है
जब तक के आखिरी जमाने में आखिरी फर्द अंदर नहीं आ जाता। And these revelations then of what has been breaks forth upon the people and they see what's happened. You get it now? All right. और फिर जो कुछ इन मुकाशवों में है लोगों पर खुल जाता है और ये देखते हैं कि क्या हुआ है। समझे? अब आप समझ गए? ठीक है। Notice the rest of the dead church members live not again until 1,000 years was passed. अब बाकी मुर्दों के मुतालिक गौर करें। कलीसिया के मेंबर दोबारा जिंदा ना हुए जब तक 1000 बरस गुजर ना गए। The church members, the Christians, the church live not again until the end of the 1,000 years, and then they come forth to stand before the bride. Right. Stand before the king and the queen. Glory. चर्च के मेंबर यानी मसीह कलीसिया 1000 बरस पूरे होने तक जिंदा ना हुई, ये सच है। फिर वो आते हैं कि दुल्हन के सामने खड़े हों ताकि वो बादशाह और मलका के सामने खड़े हों। तारीफ हो। Some church today calls herself the Queen of Heaven. The Queen of Heaven is the selected bride of Christ. And she comes with him. Daniel saw it, said 10,000 times 10,000 minister to him. बाज कलीसियाएं आजकल अपने आप को आसमान की मलका कहती हैं। आसमान की मलका तो मसीह की चुनी हुई दुल्हन है जो उसके साथ आती है। दानियल ने उसे देखा और कहा लाखों लाख उसकी खिदमत के लिए हाजिर थे। Now if you watch the scripture there in Daniel, judgment was set and the books were open. अब अगर आप दानियल की किताब में उस हवाले को देखें तो अदालत लगी हुई है और किताबें खुली हुई हैं। Now remember, when he come with his bride. The wife ministers to her husband. And 10,000 times 10,000s of thousands minister to him. अब याद रखें कि जब वो आता है तो अपनी दुल्हन के साथ आता है और बीवी अपने खावंद की खिदमत करती है और लाखों लाख उसकी खिदमत के लिए हाजिर थे। Judgment was set and the books were open and another book was open, which is the book of life. Not the bride at all. She's done gone up and come back. And standing there in judgment of those generations that refused the gospel message. अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। फिर एक और किताब खोली गई, किताबे हयात। अब ये हरगिज दुल्हन नहीं है, वो तो ऊपर उठाई जा चुकी थी और अब वो वापस आकर वहां खड़े होकर उन लोगों की अदालत कर रही थी जिन्होंने अंजील के पैगाम को रद्द किया था। Didn't Jesus say the queen of the south shall rise with this generation in her days of the judgment and will condemn this generation, for she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon, and a greater than Solomon is here. क्या यीशु ने नहीं कहा कि दखन की मलका अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दूर से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। The judgment, the queen of Sheba of the south stood there in the judgment, and her own testimony, not even a Jew, came up with that generation that was Jews, and they were blind and missed him because they were looking for him, but he comes so simple that they went plumb over the top of it like that. वहां अदालत लगी होगी और सभा की मलका जो दखन से आई थी अदालत के दिन अपनी गवाही के साथ खड़ी होगी। हालांकि वो यहूदी थे, मगर यहाँ तक उस नस्ल का कोई भी यहूदी खड़ा ना हुआ। वो अंधे थे, इसलिए उन्होंने उसको खो दिया। हालांकि वो उसके मुंतजिर थे, लेकिन वो इस कदर सादगी से आया कि ये बात उनके सरों पर से गुजर गई। And there that great queen humbled herself and come and accepted the message.
and she'll stand in the judgment, he said, and condemn that generation. लेकिन उधर उस अजीम मलका ने खुद को फरोतन बना लिया और उसने आकर पैगाम को कबूल कर लिया और वो अदालत के दिन खड़ी होगी। उसने कहा कि वो उस जमाने के लोगों को मुजरम ठहराएगी। I see the three classes always. The book, the dead were judged out. Another book, the book of life. Them who had their names in the book of life. If your name's in the book of life, it's all right, huh? No, sir. अब आप हमेशा 3 दर्जे देखते हैं। एक किताब जिसमें मुर्दों की अदालत होगी, दूसरी किताब किताब हयात, वो जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। लोग कहते हैं अगर आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ है तो ठीक है। हो नहीं जनाब। Look, Judas Iscariot had his name in the book of life. I say that's wrong. Jesus in Matthew 10 gave them power to cast out devils and sent them forth to heal the sick and to cleanse the lepers and raise the dead. And they went out and returned back. Judas right with them. देखें, यहूदा अस्करियोती का नाम भी किताब हयात में मौजूद था। अब कह दें कि यह गलत है। यीशु ने मत्ती 10 में उन्हें बदरूहें निकालने की ताकत दी और उनको भेजा कि वो बीमारों को तंदुरुस्त करें और कोड़ियों को पाक साफ करें और मुर्दों को जिंदा करें। वो गए और वापस आए। यहूदा भी उनमें शामिल था। And they cast out devils and done all kinds of miracles and returned back and said, even the devils is subject unto us. उन्होंने बदरूहों को निकाला और हर तरह के मोजज़े किए और वापस आकर कहा, बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। Jesus said, don't rejoice that the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. And Judas was with them. यीशु ने कहा, इससे खुश ना हो कि बदरूहें भी तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं और यहूदा उनके साथ था। But what happened? When it come down to the elected group to go up there at Pentecost and really receive the Holy Spirit, Judas showed his color. He'd be there in the judgment. लेकिन क्या हुआ? जब चुने हुए ग्रोह का वक्त आया कि वो 35 कोस के दिन ऊपर जाए और हकीकत में पाकरू को हासिल करे, तो यहूदा ने अपना रंग दिखाया। वो भी अदालत के दिन वहां होगा। So the books was open, and the life was open, and every man was judged thus. Now the bride standing there with Christ to judge the world. बस किताबें खोली गईं और किताबें हयात भी खोली गई और यूं सब आदमियों की अदालत हुई। अब देखें, लेकिन दुल्हन वहां मसीह के साथ खड़ी हुई है कि दुनिया की अदालत करे। Don't the Paul say, dare you talking to the bride, having any manner of grievance against each other, that you go to the unjust law? क्या पौलुस नहीं कहता, तुम में से किसी को ये जुर्रत है? यहाँ वो दुल्हन से मुखातिब है कि जब एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा हो तो फैसले के लिए बेदीनों के पास जाए। Don't you know the saints shall judge the earth? There you are. The saints is going to judge the earth and take it over. Right. क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? समझे? ये रहे आप, मुकद्दस लोग दुनिया की अदालत करेंगे और उसे ले लेंगे। ये दुरुस्त है। Say, how in the world's a little group like that? I don't know how it's going to be done, but he said it's going to be done. So that just settles it as far as I know. आप कहते हैं किस तरह दुनिया भर में इस तरह का एक छोटा सा ग्रोह हो सकता है? मैं नहीं जानता ये किस तरह होगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, उसने कहा है कि ऐसा होगा, इसलिए ये बात तय है। Now, notice the rest of the dead, the church members, dead church members, live not again until 1,000 years. अब देखें, अब तवज्जो दें, बाकी मुर्दों को देखें। कलीसिया के मेंबर, मुर्दा कलीसिया के मेंबर 1000 बरस पूरे होने तक जिंदा ना हुए। And then at the 1,000 years, they were gathered. Another resurrection come, which is second resurrection, and they were gathered. फिर 1000 साल के बाद वो जमा किए गए। एक और क़यामत हुई, जो कि दूसरी क़यामत है, और वो जमा किए गए। And Christ and the church
The bride, not the church, the bride. Christ and the queen, not the church. Christ and the bride stood there, and they were separated like the sheep from the goats. Right? और मसीह और कलीसिया, दुल्हन, कलीसिया नहीं बल्कि दुल्हन, मसीह और मलका, ना के कलीसिया बल्कि मसीह और दुल्हन वहां खड़े थे और उनको ऐसे जुदा किया गया जैसे भेड़ों को बकरियों से। ये दुरुस्त है। There's the church members come up. And if they heard the truth and rejected the truth, then what's going to be said when the big thing spread across the canvas when even your own thoughts will be there? What you thought about it. वहां कलीसिया के मेंबर उठ खड़े हुए और अगर उन्होंने सच्चाई को सुना और उस सच्चाई को रद्द किया तो फिर उस वक्त क्या कहा जाएगा जब उस बड़े पर्दे पर हर एक चीज दिखा दी जाएगी, बल्कि आपके अपने ख्यालात भी जाहिर कर दिए जाएंगे, जो कुछ आपने उसके मुतालिक सोचा होगा। I go to escaping it right on the canvas of the skies and God's great television. There's your own thoughts rebelling. Your own thoughts will speak against you in that hour. आप उससे किस तरह बचेंगे? ये ठीक आसमान की तरह फैला हुआ पर्दा होगा और वहां खुदा का बहुत बड़ा टेलीविजन होगा जिस पर आपके अपने ख्यालात आपके खिलाफ होंगे। उस वक्त आपके ख्यालात आपके खिलाफ चिल्ला उठेंगे। So if you speak one thing and think another, you better stop that. Get your thoughts on God. बस अगर आप सोचते कुछ हैं और कहते कुछ हैं तो बेहतर है कि आप इसे बंद कर दें, अपने ख्यालात खुदा की तरफ लगाएं। Keep them pure and stay right there with it and speak the same thing all the time. Don't say, well, I'll say I believe it, but I'll go find out. You believe it. Amen. अपने ख्यालात साफ सुथरे रखें और उसके साथ कायम रहें और हमेशा एक ही बात करें, समझे? ऐसा मत कहें, ठीक है मैं कहूँगा, मैं उस पर ईमान रखूंगा, लेकिन मैं तहकीक करूंगा। आपको उस पर ईमान रखना है। आमीन। Notice, these type, reason they die out, they go through the purging of trial of the tribulation because they're not actually under the blood. They claim they are, but they're not. अब उन नमूनों पर गौर करें जिसकी वजह से वो हलाक हुए और वो मुसीबत की आजमाइश में से पाक होने के लिए गुजरे, क्योंकि वो दर हकीकत वो खून के तहत नहीं थे। वो इस बात का दावा करते हैं कि वो हैं, मगर वो नहीं थे। How can they go through a trial to purify them when the bleached blood of Jesus Christ takes every symptom of sin and stuff away from you? And you're already dead, and your life is hid in Him through God and sealed in there by the Holy Ghost. वो किस तरह आजमाइश में से गुजर सकते हैं कि वो उन्हें साफ करे, जबकि रंग काट यीशु मसीह का खून गुनाह के हर उस निशान और दब्बे को आपसे दूर कर देता है और आप पहले ही मर चुके हैं और आपकी जिंदगी खुदा के साथ उसमें पोशीदा है और रूह कुद्दूस की आप पर मोहर लगी है। What are you going to be judged for? Where are you going to get your purification? What do you have to be purified from? When you're perfectly in Christ, sinless. All right, what's the judgment for? But it's a sleeping bunch of them people can't make out. फिर आपकी किस बात में अदालत होगी? आप अपनी सफाई कहां से हासिल करेंगे और आप किस चीज से पाक किए जाएंगे जबकि आप मुकम्मल तौर पर मसीह में हैं और बेगुनाह हैं? कैसे, किस बात में अदालत होनी है? लेकिन ये सोने वाला ग्रोह है, वो लोग अदालत से मुबर्रा नहीं हो सकते। Now they haven't done it for years, see, but this is the hour of revelation. See? Being revealed. Just at the coming of the bride, the last winding up, the last things are coming, it's coming to an end, friend, I believe. अब उन्होंने ये काम सालों से नहीं किया, मगर आप गौर करें, यही इस घड़ी का मुकाशफा है। देखें, गौर करें, दुल्हन के आने के वक्त ये जाहिर होता है। इख्तिताम के मौके पर आखिरी बातें वकू में आ रही हैं। दोस्तों, मेरा ईमान है कि अब ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। When, I don't know.
I can't tell you, but anything, I want to live tonight like if it was tonight, I'd be ready. He might come tonight yet, and he might not come for 20 years. I don't know when he'll come. कब मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ भी हो, मैं आज रात ऐसे ही रहना चाहता हूँ जैसे कि ये आज रात ही होना है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। समझे? हो सकता है कि वो आज रात ही आ जाए, ताहम हो सकता है कि अगले 20 सालों में भी ना आए। मैं नहीं जानता वो कब आएगा। But whenever it is, and my life might be over tonight. And then whatever I've done here is finished at that hour. I've got to meet him in the judgment the way I went out here. The way the tree leans, that's the way it falls. मगर जब भी ऐसा हो सकता है कि मेरी जिंदगी आज रात खत्म हो जाए, और इसके बाद जो कुछ भी मैंने यहाँ किया है वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। मुझे अपने कामों के मुताबिक उसकी अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दरख्त जिस तरफ झुकता है उसी तरफ गिर जाता है। Remember, when they went to buy oil, boy say, now wait a minute, Brother Branham, I don't know about that. When they went to buy oil, when they come back, the bride was done gone. And the door was shut, and they knocked and said, let us in, let us in. But they were out in outer darkness. याद रखें कि जब वो तेल खरीदने गईं, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, एक मिनट ठहरे, मैं उसकी बाबत कुछ नहीं जानता। जब वो तेल खरीदने गईं और मुड़कर वापस आईं, तो दुल्हन अंदर जा चुकी थी और दरवाजा बंद हो चुका था, और उन्होंने दस्तक दी और कहा, हमें अंदर आने दे, हमें अंदर आने दे, मगर वो बाहर तारीकी में थी। Now, if you want a type of that, now look, in the time of Noah, Jesus said, referred to it. Now, in Noah's time, they went into the ark. अब अगर आप उसकी कोई मिसाल चाहते हैं, तो अब तवज्जो दें। यीशु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, देखें, उसका हवाला दिया गया है। अब नूह के दिनों में वो कश्ती में दाखिल हो गए थे। But they were carried over during the time of the judgment. But that didn't type Christ's bride. Enoch typed the bride. और वो आगे बढ़े, लेकिन उनको अदालत में से होकर गुजरना पड़ा, इसलिए कि वो मसीह की दुल्हन की मिसाल नहीं थे। हनूक दुल्हन की मिसाल था। Enoch, Noah went over through the bride, went over through the tribulation period and suffered and become a drunk and died. हनूक, देखें, नूह दुल्हन के जरिए गया, बल्कि वो मुसीबत के दौर में से गुजरा और दुख सहा और मतवाला हुआ और फिर मर गया। But Enoch walked before God for 500 years and had a testimony he pleased God with raptured faith, and just started walking right out and went up to the skies and went home without even tasting death. Never died at all. लेकिन हनूक 500 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके हक में गवाही दी गई। उसने खुदा को खुश किया, उसने उठाए जाने वाले ईमान के साथ ऐसा किया। उसने ठीक चलना शुरू किया और आसमानों में से गुजर गया, यहाँ तक कि मौत का मजा चखे बगैर घर पहुंच गया। वो हरगिज नहीं मरा। That's a type of we which are alive and remain shall not prevent or hinder those same type of people that are asleep. They fell asleep on account of the human age and the state of human age. They died back there, but they're not dead. They are sleeping. Amen. ये उन लोगों की मिसाल है जिनके मुतालिक लिखा गया है, हम जो जिंदा हैं और बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी किस्म के लोगों की मिसाल है जो सोए हुए हैं, जो इंसानी उम्र में होते हुए और इंसानी हालत में होते हुए सो गए। वो जो गुज़िश्ता अदवार में रहलत कर गए, लेकिन मुर्दा नहीं है, बल्कि वो सो रहे हैं। आमीन। They are asleep, not dead. And the only thing it needs is the bridegroom to wake them. And we which are alive and remain shall not hinder those that's already fell asleep. वो मुर्दा नहीं है, बल्कि सोए हुए हैं, और उनको जगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जिसकी उनको जरूरत है, और वो दुल्हा है। जी हाँ, और फिर हम जो जिंदा हैं और बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। For the trumpet of God shall sound,
and the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them, and will meet the Lord in the air. क्योंकि खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंत का इस्तकबाल करें। And the rest of the dead lived not for 1,000 years. There you are. They went through the tribulation period. लेकिन बाकी मुर्दे 1000 साल तक जिंदा ना हुए। ये बात ऐसे ही है, वो मुसीबत के दौर में से गुजरे। What was it? Like Enoch. You know, Noah watched Enoch. For when Enoch come up missing, he knows judgment was at hand. He got the hanging around the ark. ये क्या था? ये हनूक की तरह था। आप जानते हैं कि नूह ने हनूक को देखा था, क्योंकि जब हनूक गायब हो गया तो वो जान गया कि अदालत नजदीक है और वो कश्ती बनाने में मसरूफ रहा। But Noah didn't go up. He just lifted a little piece off and rode over the tribulations. He was carried through the tribulation period to die the death. See? लेकिन नूह ऊपर ना उठाया गया, वो थोड़ा सा ऊपर उठाया गया ताकि मुसीबतों में से गुजरे। वो मुसीबतों के दौर में से गुजरा ताकि मौत का मजा चखे। समझे? But Noah was carried through. चुनाचे नूह उनमें से गुजरा था। Enoch was translated without death. A type of the church being caught up with those who are asleep to meet the Lord in the air, and the rest of the church is carried over into the tribulation period. Can't make nothing else out of it myself. Enoch raptured, no death. मगर हनूक बगैर मौत के तब्दील हो गया था। ये कलीसिया की मिसाल है जो सोए हुओं के साथ उठाई जाएगी ताकि हवा में खुदावंत का इस्तकबाल करे, लेकिन बाकी कलीसिया को मुसीबतों के दौर में से गुजरना है। मैं इसकी और कोई तफसीर नहीं कर सकता। हनूक जिंदा उठाया गया और मौत का मजा ना चखा। Now, let's start studying a little now. Get down to let's nice keep on that. We never will get into the seal. अब आए ताकि अब कुछ मुतालिया करें और अपने सबक की तरफ मतवज्जो हों। अगर मैंने यूं ही जारी रखा तो हम बल्कि इस मोहर तक भी ना पहुंच सकेंगे। Now notice. Let's take now, because we're going to have along maybe tomorrow night or next night hit a trumpet now and then, because the trumpet sounds at the same time the seal. अब गौर फरमाएं। आए अब इसे शुरू करें, क्योंकि अब या फिर इसके साथ ही हम शायद कल रात या परसों रात एक नरसिंगे को शुरू करेंगे, क्योंकि नरसिंगे की आवाज भी बिल्कुल मोहरों के खुलने के साथ ही सुनाई देती है। Just the same thing. The church age opens, just the same thing. ये एक ही बात है। कलीसियाई जमाना आया होता है, ये बिल्कुल एक ही बात है। समझे? Now, a trumpet always denotes war or otherwise political disturbance. The trumpet does. A political disturbance, and that causes war. अब नरसिंगा हमेशा जंग को जाहिर करता है या फिर सियासी गड़बड़ को जाहिर करता है। नरसिंगा सियासी हगामा पैदा करता है, जिसके नतीजे में जंग शुरू हो जाती है। When you go to get messed in politics, you get them all messed up, like we got it now, look out. War is at hand. But, see, the kingdom still belongs to Satan. He's still got this part in his hand. जब आप सियासत में उलझ जाते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है, जैसे कि हम आजकल हैं। तो जान लें कि जंग दरवाजे पर है, मगर देखें सल्तनत अभी तक शैतान के पास है और ये हिस्सा अभी तक उसके हाथ में है। Because why? It is redeemed by Christ, but he's doing the part of the kinsman redeemer, taking his subject until the last one name is put on that book, has already received it and been sealed away. Now, do you got it? ऐसा क्यों है? हालांकि ये मसीह ने आजाद तो करा ली है, मगर वो इस हिस्से में छुड़ाने वाले कराबती का हक अदा कर रहा है और अपनी मलकियत को हासिल कर रहा है, जब तक कि वो आखिरी नाम जो उस किताब में लिखा हुआ है, जिसे वो पहले ही से हासिल कर चुका है, लेकिन उसे मोहर बंद कर दिया गया है। क्या अब आप इसे समझे?